Let's start today's lecture. Welcome to lecture 4 of this sort of this crash course on C, in which we are taking a quick look at the various to say various C programming constructs, and we are trying to revise it as quickly as possible. And till now, if I go with a brief recap, so till now we have introduced it, we have seen how variables and expressions work in C. We have seen how we declare variables, etc. And we have seen certain operators. Particularly, we have seen the arithmetic operators. And then we switch it to conditional statements. And then there we first saw the relational operators. रिलेशनल ऑपरेटर्स में से हमने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एंड not equal to operators. Fine. And then we saw the if statement. Okay, we also saw the if else statement, and we also saw the if else if ladder, how we can use that. And then finally we wrap it up with something called as the nested if. Okay, these are actually all of them are the same, but different flavors here and there. And yesterday I gave you certain problems to do so that you could be well versed with the concepts here. ठीक है? Okay, so आज जो हम करना चाहते हैं, we will basically stay with the conditional statements. However, there are two more ways in which जिनसे आप ये कंडीशनल फ्लो जो है डिसाइड करते हैं सी में, एंड दोज आर वन इज देयर, एक तरीका उसमें से है कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा है समथिंग कॉल्ड एज द स्विच केस. I will explain both the things with a brief example and the use case in which जिनमें ये दोनों चीजें मोस्टली यूज हम करते हैं. फाइन. सो लेट्स एज्यूम कि हमारा क्वेश्चन इस तरह का है कि गिवन ए नंबर हमें बताना है whether it is a single digit number or not. Fine. Let us say given a positive number, okay? Or more honestly we can say a non-negative number. That means anything greater than or equal to 0. तो अब तक जो आपने किया है, maybe you could do that using the following way. आप शायद इस तरह करेंगे, if से अगर हमारा नंबर n है, so after that printf scanf n, we will say if n is less than 10, because हमने ऊपर जो है less than 10 हमने ऊपर assumption ली है कि नॉन नेगेटिव ही एंटर होगा. So if n is less than 10, we'll say printf single digit number. Otherwise, else we'll say printf. Okay, otherwise we'll say printf not a single digit number. Single digit. Is it so? यही इसी तरह करेंगे ना? Fine. So there is yet another way. या इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कर ले, rather than printing this message that it's not a single digit number or it is a single digit number, let us say हमारे पास एक दूसरा जो है हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है y. फाइन.
अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो हम y को 1 रखेंगे, अगर ये सिंगल डिजिट नंबर नहीं है तो y का वैल्यू हम लेट अस से 0 रखेंगे। बात समझ में आ रही है? सो लेट मी राइट इट मैथमेटिकली मे बी। सो y is equal to 0 if n is between 0 and 9, okay, and 1 or 1 otherwise, fine। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे if n equal is less than 10 then we will say y is equal to 0 and otherwise we'll say y is equal to 1, isn't it so? ये बात समझ में आई सबको? Is this clear to everybody? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Anybody जिसको कोई डाउट तो नहीं है? ओके तो इस तरीके के सिंपलर इफ एल्स जिनमें इफ एल्स टाइप की प्रॉब्लम जिनमें ज्यादा जिसमें हर इफ में या एल्स में एक ही स्टेटमेंट हो, फाइन, उसके लिए हम एक कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज द कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कंडीशन, ओके, then there is this note of interrogation, then we write whatever statement we have to do if condition is true, fine। So statement, or let me say it as true statement, and otherwise यहाँ पे else के लिए फिर हम कोलन देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे else statement जो false statement है, fine। So I'll say false statement and then end of statement, fine। तो ऊपर वाला जो है हम क्या करेंगे, सो एंड देन इट विल रिटर्न एज समथिंग, फाइन। तो यहां से इसका रिजल्ट कुछ आएगा, इस चीज का कुछ रिजल्ट आएगा। सो ऊपर वाला अगर हम करना चाहे, सो वी कैन डू दैट इन सिंगल लाइन। सो विल से n less than 10 and then note of interrogation, fine। So there are three parts to it, okay। So first is this condition part, okay, second is this statement part, true statement part, जिसमें अगर statement true रहे तो क्या करेंगे, and third and final is this false part, जिसमें अगर statement गलत हुआ, मतलब अगर condition गलत हुई तो हम क्या करेंगे, fine। So you can compare it with this. If this is condition, this is if की body, fine, but a single body, and this is else body, okay। So जो ऊपर वाला question है सर आप ये थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर सकते हैं? Okay, fine। So what I said was the problem was कि अगर let us assume कि हमारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर है हमारे पास, एंड हमें जो है एक और वेरिएबल y डिक्लेयर करना है, उसका वैल्यू हम 0 रखेंगे अगर वो सिंगल डिजिट नंबर है। नाउ सिंगल डिजिट नंबर का क्या मतलब क्या होता है, अगर एक नॉन नेगेटिव नंबर है और वो सिंगल डिजिट है मतलब वो 10 से लेस होगा, 1 to 9 है ना, हाँ। अदरवाइज हम उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ना अभी तक जो हमने इफ एल्स पढ़ा है उससे सिंपली आप करोगे इफ n is less than 10 y equal to 0 else y equal to 1, सिंपल है ना, isn't it? yes है ना, बात समझ आ रही है? yes sir तो ऐसे वाले सिंपलर इफ एल्स प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रादर देन राइटिंग दिस थिंग इन 3 लाइंस, थोड़ा बड़ा लिखने के बजाय हम इस सारे चीज को एक सिंपल लाइन में भी कर सकते हैं। और कंडीशनल यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। क्या है ये? लेट मी राइट इट। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ ternary operator. Now what does it mean to be a ternary operator? It has 3 operands. कितने हैं? 3 operands. Operand number 1 is the conditional.
operand number 1 is the condition which will either evaluate to either 0 or 1. It's a logical condition. Fine. जिस तरह हम if में condition देते हैं वो condition हम यहाँ पे भी दे सकते हैं. Then operand number 2 is the statement, single statement, which is to be executed if condition is true. बात समझ में आई? And operand number 3 is statement if condition becomes false. ये 3 स्टेटमेंट है. तो ऊपर वाला हम कैसे करेंगे फिर? फाइन. हमने सबसे पहले कंडीशन लिखनी है n लेस देन 0. उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन है. उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो ट्रू होगा. तो हम यहां पे करेंगे 0. ठीक है, हम 0. जस्ट बियर विद मी एक सेकंड के लिए. और लेट मी राइट y इक्वल टू 0 एंड देन एल्स में हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 नोट ऑफ एंड ऑफ स्टेटमेंट. ये बात समझ में आई सबको? यस. फाइन. नाउ इसको सिंपलर तरीके से इस तरह भी हम कर सकते हैं. रादर देन राइटिंग फुल स्टेटमेंट्स y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन सिंपली से 0 1 और इस स्टेटमेंट को हम y में डाल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें होगा क्या? n इज लेस देन 10 इवेलुएट होगा. अगर ये 1 हुआ मतलब ये ट्रू हुई है कंडीशन, तो 0 जो है y में चला जाएगा, अदरवाइज 1 चला जाएगा y में. यू कैन सी ये सारा स्टेटमेंट जो ऊपर 1 2 3 और 4 लाइन है वो हमने एक ही लाइन में कर दी. बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? नाउ लेट मी गो टू ओपन जीडीबी एंड मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ. फाइन. तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम हमें कोई नंबर है n और उसको मैं लेता हूँ लेट अस से 2. फाइन. एंड देन आई हैव अनदर y. नाउ अब मैं सिंपल कंडीशन लिखूंगा n ग्रेटर देन और n इज लेस देन 10. तो उस वक्त क्या करना है? हमें 0 करना है रिटर्न, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है 1. एंड आई विल से y इक्वल टू. फाइन. Let me, rather than initializing it, let me say simply printf enter n and then scanf %d comma ampersand of n. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको वो फॉल्ट सेगमेंटेशन आ रहा है. एंड द रीजन वाज कि आप लोग यहाँ पे एम्परसेंड यूज नहीं करते. स्कैनफ के साथ हमेशा आपको एम्परसेंड यूज करना है. ओके, सो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया. एंड देन आई कैन सिंपली प्रिंट इट. So I can say y is equal to %d comma y and end of statement. Now if I run this, तो ये मुझसे नंबर मांगेगा, तो मुझे नॉन नेगेटिव नंबर ही देना है. So let me give it 3. So it will say y is equal to 0 क्योंकि हम 0 रिटर्न करते हैं. Fine. Now if I give something which is greater than 10, sorry, not a single digit number, let me give it 10. तो ये y इक्वल टू 1 आ जाएगा. बात समझ में आ रही है सबको? इज दिस क्लियर? नाउ रादर देन डूइंग दिस, जैसे मैंने पहले किया था, लेट अस ट्राई दैट. सो मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. इन दैट केस आल्सो इट शुड प्रोबेबली रन बेटर. रन से l वैल्यू रिक्वायर्ड इज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट. ओके ओके फाइन. तो ये असल में इस तरीके से चलता नहीं है. आई थिंक आई रिमेम्बर कि मैंने इस तरह यूज किया है, बट हो सकता है मैं गलत हूँ. इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा. तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऑपरेंड रिटर्न करेगा ये वैल्यू, और अगर ये फॉल्स होगी तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा. बात समझ में आई को? इज दिस क्लियर? डिफरेंस सबको समझ आई? नो सर, रिपीट कीजिए फिर से सर. हाँ, आई विल रिपीट. तो क्या होगा, लेट मी अगेन गो बैक टू द नोटबुक. तो इसका असल में जो ये कंडीशनल ऑपरेटर है वो इस तरह काम करता है. ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे कंडीशन. ठीक है, कंडीशन लिया. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे. क्या देंगे उसको? लेट मी कॉल दैट वैल्यू एज ट्रू वैल्यू. ओके, ट्रू वैल्यू.
तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू। लेट मी से यहां पे कोई वेरिएबल है वैर इक्वल टू, ठीक है, तो ये इस तरह काम करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, सो वैर में चला जाएगा क्या, ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है, इज फॉल्स, तो वैर में चला जाएगा मेरे फॉल्स वैल्यू। फॉल्स ओके, तो यहां पे बेसिकली हम दो वैल्यूज देंगे, यहां पे देंगे ट्रू वैल्यू और यहां पे देंगे फॉल्स वैल्यू, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये या तो ट्रू वैल्यू चला जाएगा वापस या चला जाएगा वापस फॉल्स वैल्यू। अब बात समझ में आई? गुड, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके फाइन। तो लेकिन अभी हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूरी तरह से किया नहीं, ना इस वाल, ना यूजिंग इफ, ना यूजिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें हमने एजम्पशन ली है कि नॉन नेगेटिव नंबर है। लेट्स एज्यूम कि नॉन नेगेटिव नंबर नहीं भी है, ठीक है, या मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। क्वेश्चन अगर इस तरह होगा, गिवन ए नंबर, ठीक है, फाइंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? इफ वी हैव एनी नंबर x, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह होता है, x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0। यही होता है ना x की एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, ठीक है। बात समझ में आई सबको? तो हाउ डू यू डू दिस प्रोग्राम? ये तो सिंपली हो जाएगा, है ना। इस वाले प्रोग्राम को आप कैसे करेंगे? यूजिंग द सेम कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम सिंपली लिखेंगे x लेस देन 0। हम चेक करेंगे क्या x 0 से लेस है या नहीं है। अगर है, ठीक है, अगर है तो हम रिटर्न करेंगे -x, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे x, एंड देन वी कैन मे बी पुट इट इनसाइड x एज वेल, ठीक है, x में या फिर लेट अस से y में डाल देंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन हमें करना है कि चेक वेदर द नंबर इज सिंगल डिजिट और नॉट। अगर ये सिंगल डिजिट है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर सिंगल डिजिट है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम इस तरह कर सकते हैं। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 0। अगर ये सिंगल डिजिट है तो हम 0 रिटर्न करेंगे, लेकिन सिंगल डिजिट कब होगा? अगर ये होगा बिटवीन -9 एंड 9, यही होगा ना। अदरवाइज हम 1 रिटर्न करेंगे, अगर अदरवाइज y का वैल्यू 1 रहेगा। अब ये वाली कंडीशन आप कैसे करोगे जिसमें ये दो कंडीशन, दिस इज एक्चुअली टू कंडीशंस, x should be less than or equal to 9 and x should be greater than or equal to 9, both the things should be correct। बात समझ में आई सबको? हेलो, किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। तो कैन यू डू दिस थिंग? ये वाला चीज आप कैसे करोगे? Now this is something called as joining of conditions, है ना। 2 or more conditions को अगर join करना है, now that joining is done by something called as logical operators। किससे होता है? Logical operator, and we have 3 logical operators in C। कितने हैं? क्योंकि 3 ही कनेक्टिव्स है। एक तो होता है एंड, दूसरा होता है और, एंड देन तीसरा होता है नॉट। ये आपने जो है डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ा होगा, अगर आपको होगा, या वो गेट्स होते हैं ना,
एंड Yes, गेट, sir. और गेट, नॉर गेट, सेम वाला यहाँ पे भी है। तो एंड को लिखने के लिए हमारे पास ये है डबल एम्परसेंड, ठीक है। और को लिखने के लिए दो ये पाइप सिंबल है, अगर आप कीबोर्ड पे देखोगे तो दो पाइप सिंबल है, तो दो खड़ा जो है, दो जो वर्टिकल लाइन है दो हैं, दो वर्टिकल लाइन होती है एक आपके कीबोर्ड पे, उसी को दो बार प्रेस करना है। एंड देन फाइनली फॉर नॉट वी हैव दिस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, नाउ नॉट इज ए यूनरी ऑपरेटर। नॉट से क्या होगा, कोई भी कंडीशन जो है उसका अपोजिट निकल जाएगा। सो इफ आई से लेट अस से x ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन क्या देखेगी, वेदर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 और नॉट, ठीक है। लेट अस से दिस, अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा, ठीक है, तो जो इस कंडीशन का वैल्यू है उसको नेगेटिव करेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास x इक्वल टू 3, क्या x ग्रेटर देन 9 है और इक्वल टू 9 नहीं है, तो ये इवैल्यूएट होगा टू 0। अब उसके सामने मैंने नॉट लगा दिया तो ये टोटल इवैल्यूएट होगा टू 1। फाइन। इसी तरह अगर मेरा x 13 है तो 13 इज ग्रेटर देन 9, तो ये 1 निकलेगा, लेकिन मैंने आगे नॉट लगाया तो ये इवैल्यूएट हो जाएगा टू 0। फाइन, बात समझ में आई? गुड। एंड और आपके एंड गेट और ऑर गेट की तरह ही काम करते हैं ना। इन दिस केस नाउ अगर मुझे अब ये वाली कंडीशन लिखनी है, -9 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 9, इसको मैं इस तरह लिखूंगा। सो आई विल से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 एंड, ठीक है, सो आई विल कनेक्ट दीज टू कंडीशंस विद एन एंड ऑपरेटर। x इज लेस देन और इक्वल टू 9, अब इसमें तो इस तरह लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -9 एंड देन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही है? फाइन। और तो ये आप कंडीशन कहीं पे भी बना सकते हो एंड यू कैन यूज इट विद इफ, यू कैन यूज इट इन कंडीशनल ऑपरेटर एज वेल। यहां तक सब समझ आया? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ रहा है ना? नाउ कैन यू यूज जो आपने प्रोग्राम्स कल किए हैं उनमें से बहुत सारे अब आप कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हो। जो सिंपली इफ एल्स वाले प्रोग्राम्स हैं वो आप सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हो। नाउ देयर आर सम यूज केसेस जिनमें आप जो है कंडीशनल ऑपरेटर को नेस्ट भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रू वैल्यू वाला है, उसमें आप एक और कंडीशनल ऑपरेटर डाल सकते हो। इसी तरह फॉल्स में भी एक और कंडीशन, जिस तरह आपने इफ को नेस्टेड बनाया, बट दैट इज बियॉन्ड बिसाइड द पॉइंट ऑफ यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर, वो हम यूजुअली अवॉइड ही करते हैं। उसके लिए फिर हम सीधा इफ एल्स पे ही जाते हैं। ये वाली चीज अब तब करते हैं जब सिंपल दो वैल्यूज रिटर्न करने हो, या ट्रू के वक्त या फॉल्स के वक्त, तो उस वक्त हम मे भी जो है कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। बात समझ में आई सबको? इज दिस क्लियर नाउ फॉर एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। नाउ दूसरा, the second topic which I want to cover today is something called as the switch case. Now again, whatever we can do with switch case, we can already do with if else if. Okay, but there are certain cases जिस तरह हमारा सिंपल अगर if else हो तो हम कभी कभार सिंपली कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर अदर केसेस जिनमें हमें स्विच केस आसान हो जाएगा यूज करना। वो क्या केसेस है? सो लेट अस एज्यूम हमारी प्रॉब्लम ये है, given a single digit number, write it in write it in letters. So for example, अगर मैंने 9 किया तो मुझे लिखना है NINE 9, अगर मैंने 3 किया तो मुझे लिखना है THRE 3, so on and so forth। ये बात समझ में आई? हम एक नंबर एंटर कराएंगे यूजर से, वो जो नंबर देगा, जो वो नंबर होगा उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। फाइन, समझ में आई ना? इसको अगर आप करना चाहो तो आप सिंपली इफ एल्स से कर सकते हो। यू कैन से इफ n is equal to 1 printf one,
else if n equal to 2, ठीक है, आप कहोगे प्रिंट एफ TWO2, else if so on and so forth. फाइनली करोगे else, अगर ना 1, अगर 1 से 9 तक कोई नहीं है तो आप कहोगे मे बी प्रिंट एफ नॉट ए सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, है ही नहीं, यही करोगे ना, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Fine. इस तरीके के केसेस जिनमें जो है सिंपल एक नंबर उसका वैल्यू देखना है, ठीक है, उस नंबर का वैल्यू देखना है एंड उसके अकॉर्डिंगली चंद केसेस आ जाएंगे। इस तरीके की चीजें के लिए आप सिंपल स्विच केस भी यूज कर सकते हो। स्विच केस का सिंटैक्स क्या है? तो आप लिखोगे सिंपली स्विच एंड देन यहाँ पे असल में एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। नाउ दैट एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट टू सम इंटीजर वैल्यू, किसको इवैल्यूएट होगा? इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू, ठीक। दिस एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट टू आइदर एन कैरेक्टर वैल्यू और एन इंटीजर वैल्यू। तो यूजुअली हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल देते हैं, उसके बाद ब्रेस स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट समथिंग कॉल्ड एज द केसेस। तो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर केस, फिर हम कहेंगे अगर वैल्यू 1 कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई तो फिर सेमीकोलन और यहाँ पे स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड देन फाइनली विल यूज अ ब्रेक। अगर के वैल्यू 1 नहीं निकला, लेट अस एज्यूम कि ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई टू वैल्यू 2, ओके, तो उस हिसाब से फिर ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो एंड देन वी हैव टू अपेंड अ ब्रेक। इसी तरह से अगर 2 वाला भी नहीं हुआ, सो लेट अस एज्यूम कि हमें वैल्यू 4 निकला या 3 निकला, ओके, तो उस हिसाब से हम स्टेटमेंट्स ये वाले एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन वी विल ब्रेक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू नहीं आया इनमें से, जो जिसके लिए कोई मैचिंग केस नहीं है, वी कैन हैव अ डिफॉल्ट, ओके, एंड देन उसके स्टेटमेंट्स एंड देन फाइनली ब्रेक। तो अगर हमें ऊपर वाला प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस करना है तो विल डू इट समथिंग लाइक दिस। सो विल से स्विच, कौन सा वैल्यू हमें देखना है? लेट अस एज्यूम n, हाँ, तो हमें n देखना है। तो उसके बाद हम ब्रेस स्टार्ट करेंगे, विल से केस अगर 1 है तो विल से प्रिंट एफ one और फाइनली ब्रेक। अगर n का वैल्यू 1 नहीं था, लेट अस एज्यूम n का वैल्यू 2 है, ठीक है, सो विल प्रिंट एफ TWO और फिर ब्रेक, फाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर में से कोई भी नहीं है, जो हमने लास्ट में एल्स लिखा था, एल्स के बदले, लास्ट वाले एल्स के बदले यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है, सो आई विल से प्रिंट एफ नॉट ए वैलिड नंबर या कोई भी जो अप्रोप्रिएट मैसेज होगी एंड देन वी कैन हैव अ ब्रेक एंड यहाँ पे ब्रेस क्लोज करेंगे, फाइन। सो लेट मी फर्स्ट शो यू इट विद एन एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। तो एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आप क्या करूंगा, लेट्स एज्यूम कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, ओके, वी विल डिफाइन ए सिंपल कैलकुलेटर। नाउ कैलकुलेटर क्या करेंगे, वी इनपुट 2 नंबर्स, कितने? वी इनपुट 2 नंबर्स एंड एन ऑपरेटर, ठीक है, प्लस माइनस स्टार डिवीजन, ये 4 ऑपरेटर्स हम एंटर करेंगे एंड देन मे बी ए परसेंट एज वेल। तो जो भी ऑपरेटर एंटर होगा हम डिस्प्ले कराएंगे उन 2 नंबर्स का या सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या उनका डिवीजन करके रिमाइंडर, ठीक है, बात समझ में आई? सो दिस इज द प्रोग्राम वी विल डू, फाइन। सो मैं आपको ये दोनों तरीके से दिखा दूंगा, यूजिंग इफ एल्स एंड देन फाइनली यूजिंग द स्विच केस, फाइन, एंड यू विल सी कि स्विच केस से हमें ये आसान थोड़ा हो जाएगा। ओके, सो लेट मी गो बैक हियर। तो उसके लिए मुझे कितने नंबर्स अब चाहिए? 2 नंबर्स। सो लेट्स एज्यूम कि इंटीजर उसी है, इंटीजर, लेट मी कॉल देम x एंड y एंड देन फाइनली z, जिसमें मैं स्टोर करूंगा इसका वैल्यू, ओके, जिसमें मैं z का जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं स्टोर कर दूंगा, फाइन। एंड
इसके अलावा जो भी चॉइस होगी कि कौन सा ऑपरेटर होगा वो मैं ओपी में फॉर एग्जांपल स्टोर कर दूंगा. राइट, नाउ लेट मी गेट टू नंबर्स, सो आई विल से एंटर टू numbers and I will say scan f %d. बहुत सारे जो है यहाँ पे कभी कभार कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आप टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखोगे या स्पेस डाल दिया कुछ और किया तो उसमें एरर आ सकता है. तो इसमें खाली सिंपली जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रहेंगे, उनके बीच में कुछ नहीं, ना आगे कुछ होगा ना पीछे कुछ होगा. सिंपल जितने वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे. अब सबसे पहले मैं x लूंगा and then I will take y. Now I will then say ask find the enter the operator. Enter the operator. Okay. Now operator enter करने के बाद उसको मैं scan कर लूंगा and I will say because this is a character so I will say %c comma and then I will store it in op. Okay, fine. Now if else से कैसे होगा, I will say if op is let us say plus, हाँ, तो z is equal to x plus y. Fine. Now else if op is equal to minus, तो मैं कहूंगा z is equal to x minus y. Fine. इसी तरह से मैं कहूंगा else if, so I will say else if op is equal to star, so this will be star, and else if अगर op अब division रहा, so here I will get the division, and else if अगर ये % रहा मतलब मॉड्यूलस रहा तो मैं यहाँ पे मॉड निकालूंगा. फाइन. एंड फाइनली मैं कहूंगा else अगर इनमें से कोई भी नहीं रहा तो आई विल से प्रिंट एफ बैड ऑपरेटर. फाइन. या मैं कुछ और यहाँ पे मैसेज लिखूंगा नॉट ए वैलिड ऑपरेशन. ओके, सो नॉट ए वैलिड ऑपरेशन. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है इन दोनों को अपेंड करूंगा. ठीक है, पहले x रखूंगा फिर उसके साथ y रखूंगा, या मैं सिंपली z में 0 डाल दूंगा. फाइन. या मैं z में कोई बड़ा सा नंबर डाल दूंगा. फाइन. कुछ भी वट एवर आई विश, जो भी मैं करना चाहूं, या कुछ भी नहीं करूंगा. ठीक है. एंड ये सब करने के बाद फाइनली आई कैन print f, I can print the value. Fine. So the result is %d comma z. Fine. तो ये मेरा रिजल्ट रहेगा. गुड. सो इसको मैं अगर रन करूंगा so two numbers, let us say 2 and 5. Okay, ampersand of x, ampersand of y, %c, ampersand of op. प्रॉब्लम हुई है कहीं क्या? ओके, फाइन. So let me enter two numbers 4 and 4. Enter the operator. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? %c comma ampersand of op. It should work. क्यों नहीं चल रहा है? I don't think इसमें कोई प्रॉब्लम. Anybody having any idea कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अगर ऑपरेटर पहले लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट शुड वर्क. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड. और एक्सपोर्ट नहीं हुआ है.
Let me try again. Okay, let me try this. Get C. Enter two numbers 2 and 5. Okay, it's not working. I will see कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट तब तक हम लेटस से इंटीजर ले लेते हैं एंड लेटस से कि 1 अगर हम देंगे तो एडिशन होगा, 2 देंगे तो ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. सो 1, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, बट let I will try it out. 3, I will let you know people, हाँ, you people know कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें. 4 and this is 5. Okay, and let me do this. Scanf %d comma ampersand of op. Somebody's नहीं है. Somebody is saying कि आपने printf लिखा है, but no, that's not the problem. Yes, let me check. अगर यहाँ पे भी नहीं चला, then maybe we have done something wrong. Okay, end of statement भूल गए. Let me run it now again. So 2 numbers, let me give it 2 and 3, and let's say operator 4 है तो result 0 आएगा. Fine. So 4 is forward division, huh? 2 divided by 4, 3 is 0. We again test it. Let us say 45 and 3, and let's try to get the remainder. 45 divided by 3, तो remainder हमारा 3 1 3, 3 5 15, 0 आएगा. Fine. Okay, 45 divided by 3, I didn't know. Okay, let me say 55, and then let us say divided by 3, तो remainder उसका 1 आ रहा है. Fine. So you can do it this way. The same thing इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं using something called as the switch case. तो इसको मैं comment out करता हूँ. इसको मैंने सारे को comment किया. Now I can do something. I will say switch as WITCH switch, and then have OP. Fine. Now OP के यहाँ पे इस वाली एक्सप्रेशन जो इन पैरेंथेसिस के दरमियान है, जो भी एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या आता है, उसके हिसाब से हम केसेस नीचे मैच होंगे. जो मैचिंग केस होगा तो वही वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अब चूंकि यहाँ पे सिंपल ओपी है तो ओपी में जो वैल्यू होगा तो ये एक्सप्रेशन उसी के अकॉर्डिंग इवेलुएट हो जाएगी. फाइन. सिमिलरली जो आपने कंडीशनल ऑपरेटर में दिया था ना, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, तो वहां पे भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हो और उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके जो वैल्यू आएगा वहीं से आप कर सकते हैं. फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो आई विल देन से केस 1. फाइन. एंड देन आई विल से printf, or not printf, so I will say z is equal to x plus y, and then I will say break. Fine. And then I will take another case, case 2, control C. So this is case 2. Similarly, I have case 3, case 4, case 5. Okay, so 1, this is 2,
So 2 is for minus, this is 3, and 3 is for multiplication. This is 4, and 4 is for division. This is 5. 5 is for remainder. And then finally I will have something called as the default. So I'll say default. यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज लिख लूंगा, printf not a valid option फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड देन ब्रेक इट, एंड यहाँ पे मैंने स्विच को बंद किया. फाइनली आई विल प्रिंट कि वट एवर द रिजल्ट इज दिस थिंग. फाइन. सो इफ आई नाउ अगेन रन इट, रिजल्ट विल बी द सेम. कहाँ पे प्रॉब्लम हुई? Z लाइन नंबर 40. ओके, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ ये कोलन. enter two numbers, let us say 24, 34 and 3, and let us say the operation is multiplication, so it will give us the result which is 102. Fine. By the way, this is not this end of statement, it's always a colon. Fine. The end of statement nahi hai, please be sure about it. Same thing is in the conditional operator. Fine. ये बात आपको सबको समझ आई? Can you do these type of things now? Do you understand कि अब ये switch case कहाँ पे use होगा? So let me go back to the notebook and let me make a few points. Go to the notebook. सर इसको आप थोड़ा सा पीछे से रिपीट कीजिए. मतलब प्रोग्राम को, या सर मतलब आप इसको थोड़ा समरी के टाइप में. या आई विल डू दैट. सी हमारे पास जो है इफ एल्स है, वो उसके लिए जब भी हमें कंडीशनल कोई चीज होगा उसके लिए हम इफ एल्स कर सकते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, दैट इवेलुएट्स टू ओनली अ फ्यू वैल्यूज 0 1 2 के सम के वैल्यूज को वो इवेलुएट होती है, एंड बेस्ड ऑन ईच वैल्यू हम कोई एक्शन लेंगे. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक. तो इन आवर केस जो मैंने आपको एग्जांपल दी, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक वेरिएबल जो है ओपी है, ठीक है. तो अगर प्लस है तो हम दो नंबर्स का एडिशन करेंगे, अगर माइनस है तो दो नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे. तो इस तरह के केसेस के लिए you rather than using if else, we can do the same thing with if else, but we have another facility called as the switch case facility. Okay, जिसमें हम इसी तरह का काम कर सकते हैं. लेकिन उसमें आप कुछ चीजें याद रखिए. ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, it should always evaluate to an integer or a character. बात समझ में आई? ये अगर फ्लोट में इवेलुएट होता है तब जाके नहीं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक्सप्रेशन है लेट अस से 2 डिवाइडेड बाय 1.0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमने पिछले दिनों पढ़ा था, इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट में, है ना, इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट में. तो इस वाले केस में हम स्विच केस यूज नहीं कर सकते. फाइन. So we always use switch case whenever this expression evaluates to an integer and char. Now then, which statements we have to execute, those we have to mention in the corresponding cases. तो इसका syntax कुछ इस तरह का है. So we say switch and the expression which we have to evaluate, and then the corresponding cases. Case value 1, अगर value 1 हुआ तब फिर नीचे वाले statements कर लें. अगर value 2 हुआ तो उसके फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने. तो ये क्या करेगा स्विच केस? इट विल सी दिस एक्सप्रेशन. फाइन. व्हिचएवर वैल्यू मैचेस, नीचे जो भी वैल्यू मैच होगा वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा. बात समझ में आई सबको? आप फाइन. अब लेकिन इसमें कुछ चंद चीजें हैं. एक तो मैंने बता दिया कि मैंडेटरी है कि एक्सप्रेशन हमेशा या तो इंटीजर होनी चाहिए, या that means the evaluation should be either integer or
कैरेक्टर, और वो एक्सप्रेशन आप ऊपर तो हमने सिंपली एक वेरिएबल लिया, लेकिन आप कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी ले सकते हो। सो लेट अस से कि हमें वही वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला करना है, ठीक है, तो उसमें आप एक्सप्रेशन इस तरह भी लिख सकते हो, स्विच, ठीक है, स्विच लेट अस से बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, या इस तरह मैं लिखता हूं, आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इंटीजर एक पूरी एक्सप्रेशन आपने लिख ली, इसको इवेलुएट करेंगे, फाइन ना, बेस्ड ऑन कि इसका वैल्यू क्या आएगा, फाइन, ठीक है, बेस्ड ऑन का वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग आप नीचे केसेस रख सकते हो। मे बी दिस वाज अ बैड एग्जांपल बट एनीवेज, ठीक है, तो इसके नीचे आप जो है केसेस रख सकते हैं। सो तो याद आप रखिए हमेशा, स्विच केस हम तब यूज करेंगे व्हेन एन एक्सप्रेशन evaluates to a finite number of integer values, fine, integer values, and we have to do certain things accordingly, ठीक है, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि अगर let us say we have some expression expr and that can possibly evaluate to one of the k values, fine, so v1 v2 dash 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 vk ना, अगर v1 हुआ तो हमें सेट ऑफ ऑपरेशंस s1 करने हैं, अगर v2 हुआ तो सेट ऑफ ऑपरेशंस s2 करने हैं, so on and so forth। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, we will always use, because it's easier to use, switch case, so we'll say switch and then expr and then we start the brace and we'll have corresponding cases, case v1 और यहाँ पे statements, and at the end हमेशा break रहेगा, ठीक है, केस v2 इसी तरह, केस v3, so on and so forth। बात समझ में आई? Yes. ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया एक पॉइंट, ठीक है, कि हमेशा एक्सप्रेशन होगी एंड दैट शुड इवैल्यूएट टू एन इंटीग्रल वैल्यू, फाइन। सेकंड है कि ये जो ब्रेक है इट इज ऑप्शनल, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हमने ब्रेक हटा दिया, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने ब्रेक हटा दिया तो उससे ये चल जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि नीचे, उसके नीचे जो है एंड ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी ये एंड ऑफ स्विच जो है, वहां तक जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सब के सब इवेलुएट हो जाएंगे। तो ऊपर वाले केस में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे था केस टू हमारा हुआ, तो केस 2 से नीचे नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, केस 3, केस 4, केस 5, वो सारे के सारे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऑलवेज वी कीप द ब्रेक, ऑल्दो इट इज ऑप्शनल बट वी हैव टू डू इट सो दैट के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे। तीसरा जो है, जो डिफॉल्ट है वो भी ऑप्शनल है, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, ठीक है, एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। ये जरूरी नहीं है कि सारे केसेस के लास्ट में आपने डिफॉल्ट लिख लिया, एक तो आप पूरा से ही डिफॉल्ट को हटा भी सकते हैं, जिस तरह आपने लास्ट में एल्स लिखा और आप एल्स नहीं भी रख सकते हो तो वो भी सही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप डिफॉल्ट भी हटा सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट लास्ट में ही हो, ये ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, विद जिस तरह एक और केस, जिस तरह अदर केसेस है उस तरह ये जो है डिफॉल्ट वाला केस भी है, फाइन। तो ये तो हो गया फाइनली, तो आई थिंक मैंने सारा बता दिया है। आई जस्ट वांट टू अपडेट दिस दिस थिंग हियर। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली इस तरह होना चाहिए। सो वी विल हैव दिस कंडीशन, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रू एक्सप्रेशन, अगर ये फॉल्स हुई तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स EXPR, ओके। नाउ ये एक्सप्रेशन जो है दे विल रिटर्न टू सम वैल्यू and then you can assign those values to some variables here VAR, although this part is optional। आप यहाँ इसको टोटली स्किप भी कर सकते हो, जिस तरह आप सिंपली लिख सकते हो 2 + 3,
इस तरह ये वैलिड है, लेकिन यूजुअली इसका लिखने का कोई फायदा नहीं होता. यू ऑलवेज नीड टू पुट इट इनसाइड सम वैल्यू, लेट अस से i. सिमिलरली आप ये वाला भी कर सकते हो एग्जीक्यूट विदाउट असाइनिंग इट टू एनीथिंग, तो तब भी चल जाएगा ये. अब ये बात सबको समझ आई? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Should we end the class then in that case? Fine. I hope कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. एक्सक्यूज मी Yes. सर, हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो जी जी नेस्टेड इफ का सब पढ़ा है कल, हाँ हाँ उसका जो वो सर जो वो एक बार अगर रिपीट कर सकते हैं. रिपीट करना है. हाँ? अच्छा सर, वही कंडीशन जो आपने कल यूज की प्रोग्राम में, कल सर वो कौन सी नेस्टेड थी? वाली सर, वो एक जिसमें मिनट, आपने कि मैंने कौन सी वाली की है यूज? क्वेश्चन. ओके, रूट्स वाली. हाँ यस सर, यस सर. हाँ, तो देखिए रूट्स वाली क्या कंडीशन थी. देखिए हमें जो है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन निकालने हैं, है ना. रूट्स ऑफ एन of a quadratic equation, of a quadratic equation. Now roots of a quadratic equation is dependent upon the discriminant, है ना. It's dependent upon the discriminant which is equal to b square minus 4ac. उस पे दो चीजें हैं. या तो ये रूट्स, either the roots are real or imaginary, है ना. So सबसे पहला टेस्ट हम यही करेंगे. So we'll say if d is less than 0, तो हम सिंपली कहेंगे रूट्स भैया इमेजिनरी है तो हम नहीं निकाल सकते. तो I'll say roots are imaginary. Okay, fine. Else अगर ये रूट्स इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, तब रूट्स निकालने के अब दो तरीके हैं. ठीक है, या तो अब ये रियल, या तो दोनों रूट्स इक्वल हैं या फिर डिस्टिंक्ट है. ठीक है, अब एल्स में अब दो और कंडीशंस आ गई ना, तो इसके अंदर एल्स की बॉडी में हम फिर से एक और इफ डाल सकते हैं. सो वी कैन से एल्स में, हाँ, सो वी कैन से एल्स में जैसे इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ, सो वी कैन से roots are real and equal. else में हम लिखेंगे printf roots are real and distinct. बस यही है. अब इसको हम नेस्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इफ में हमने दूसरा अंदर से एक और इफ इस्तेमाल किया. बात समझ में आई? अच्छा अच्छा सर, मतलब ये जो इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स थे, मतलब उसी के अंदर दूसरा है ये. अच्छा अच्छा. हाँ 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 सर, मतलब जो आपने ऊपर बोला ना d इज लेस देन 0, हाँ हाँ मतलब जो दूसरा वाला इफ आपने एल्स के अंदर यूज किया, मतलब ये उसी के अंदर अगर दो कंडीशन सर चेक हुई हैं और. हाँ, दो कंडीशन और फर्दर Yes, sir. चेक कर. Yes, sir, अब ये yes, sir. जरूरी नहीं कि डी को ही कंडीशन चेक करता है. हो सकता है कि लेट अस से कि हमें कुछ, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह है, लेट अस से कि अगर हमारे रियल रूट्स हैं, तो उसके बाद हम लेट अस से कि हम उससे एक और वैल्यू मांगेंगे, फिर उसका वैल्यू हम टेस्ट करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, तो कुछ और कंडीशन भी हो सकती है. सो दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट कि ऊपर क्या हो रहा है. यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली दूसरे इफ भी लगा सकते हो. अब ये इसी तरह आप एक और चीज भी कर सकते हो. ये तो आपने इफ लिखा, इफ एल्स, इसके नीचे आप एक और इफ एल्स भी लगा सकते हो. सो दो कंसेक्यूटिव इफ एल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो ट्रीट दिस एल्स एज अ बॉडी में आप कुछ भी डाल सकते हो. Yes, sir. बात समझ में आई? यस. Yes, sir, yes, sir. Thank you. Yes. कोई डाउट फिर से रहा? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Hello, sir. हाँ हाँ जी बोलिए. जो हमें कल होमवर्क मिली थी ना, हाँ हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन था, आपको अमाउंट दे के है, तो आप उसमें देखो कि नोट्स मतलब कितने हैं, किस टाइप के नोट्स कितने हैं, 500 के कितने हैं, 100. सर उसके मतलब रिलेटेड थोड़ा समझाइए. ठीक ठीक, लेट मी सी कि ये कहाँ पे है. Sir, write a program to count total number of notes in a given amount. In a given amount. Okay. Yes.
हाँ, तो सो फॉर एग्जांपल आप इस तरह करोगे, ये विजिबल है ना अभी नोटबुक? यस सर। सो लेट अस से मैंने आपको दिया है कोई अमाउंट 23964, लेट अस से ये मेरा अमाउंट है। अब हमारे डिनोमिनेशन क्या क्या हैं? हमारे पास 2000 के नोट हैं, है ना? यस सर। हमारे पास 500 के नोट्स हैं, हमारे पास 100 के नोट्स हैं, 50 हैं, 20 के हैं, 10 के हैं, एंड देन 5 के हैं, 2 के हैं और 1 के हैं, यही है ना? यस सर। तो जब भी कोई अमाउंट होगा उसमें से अगर आपको देखना है कि 200 के कितने नोट्स है, तो आप कैसे देखोगे? यू डिवाइड दिस अमाउंट बाय 200। 2000, है ना? हाँ, अगर वहां 2000। से जो क्वोशंट आएगा उतने 200 के नोट्स हैं, ठीक है? बाकी जो बचेगा उसको आप 500 और बाकी डिनोमिनेशन से करना चाहोगे, ठीक है? सो लेट अस से कि हमारे पास n है, ठीक है? सो पहला स्टेप हम करेंगे, सो नंबर ऑफ 2000, नंबर ऑफ 2k विल बी n डिवाइडेड बाय 2000। ये हमारे निकल गए कितने? हमारे इसमें 2000 के नोट है। फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब जो हमें देखना है इसके बाद, वो हमें देखना है कि बाकी डिनोमिनेशन से कितना है। तो वो बाकी अमाउंट कितना बचा वो कहां से निकलेगा? वो हमें जो इस डिवीजन से रिमाइंडर निकला वही होगा ना? निकलेगा वो तो उतना। हम कहेंगे n इज इक्वल टू n mod 2000। फाइन। अब आगे फिर से करोगे, नंबर ऑफ 500, ठीक है? नंबर ऑफ 500 किसके बराबर होगा? n डिवाइडेड बाय 500 and then n equal to n mod 500, so on and so forth। यस। ठीक है, बात समझ में आया? हो सकता है इसमें आपको कुछ और भी देखना हो, कि हो सकता है कि इसमें कोई 2000 का हो ही नहीं, आपको 0 लिखना है, नहीं लिखना है, बट एनीवेज यू विल ट्राई दैट योरसेल्फ। हाँ, ओके सर, मतलब अमाउंट ठीक है सर। अगर हम पहले ही, मतलब ये जरूरी है कि हम पहले ही अमाउंट दे किया, मतलब हम फिर प्रिंटफ में मतलब मैसेज करेंगे कि एंटर अमाउंट? हाँ हाँ, वैसे ही तो करना है, यूजर से ही लेना है अमाउंट, आप यूजर से ही लोगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल से दिखाया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, किसी और को कोई और क्वेश्चन है? चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। हाँ, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट। हाँ, सर। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम।